بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا متعلق ہے کہ ہم نے شاید اب چاول نہیں کھانے. کیٹو ڈائٹ سے وزن بھی کم ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس ہوتی ہے, فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن بندے کی زندگی کسی کام نہیں رہتی. اب آپ احسان چڑھا کے آپ 15 منٹ واک کر لیتے ہیں, آپ 5-6 منٹ ہلکا پھلکا جم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں جم کر کے آیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ نمبر 1 فوڈ کون سی ہے تو وہ پائے ہیں. السلام علیکم جی. 2-3 دن پہلے نا وہ آپ کے جو کیبل والا نا وہ اپنا بل لینے آیا منتھلی, تو میں گیا باہر تو مجھے کہتا ہے اپنا چربی دار متعلق کے کچھ. اب فیصل آباد کے لوگ نا کسی کو پوچھنا ہوگا نا آپ کا نام کیا ہے, کہیں گے اپنا نام کی ہے. اچھا چربی. میں نے کہا کیا کہتے جی مطلب کہ چربی دے نال کوئی کاروبار نہیں. میں کسائی نہیں بھائی کیا نہیں, وہ مینو کسی نے دسیا سی تسی ذرا چربی گھٹان دے ہو. میں کہ دس از دی ون آف دی بیسٹ ڈیفینیشنس کہ ڈائٹیشنس کے لیے یا ہیلدی لائف سٹائل کے لیے کہ آپ چربی کے متعلق ہیں تو آپ چربی کو کم کرتے ہیں. تو دیٹ واز انٹرسٹنگ. ہیلدی لائف سٹائل یا ہیلدی لائف سٹائل, یہ 2 اپروچز ہیں کہ لائف سٹائل کو ہیلدی کر دیں یا ہیلدی لائف سٹائل. اپنی لائف سٹائل کو بھی پورا جہنم بنا دیں. کرنا کیا آپ نے, ہوتا کیا آپ نے, کر کیا رہے ہیں آپ. اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب روٹی نہیں کھانی. ہرگز نہیں, روٹی کھائیں گے آپ. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کا متعلق ہے کہ ہم نے شاید اب چاول نہیں کھانے. وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور اہموں کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو آپ کی چاول بند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب آپ کی ساری زندگی پرہیز سے گزرے گی. ہرگز نہیں. ہیلدی لائف سٹائل میں پرہیز تھوڑا سا پارٹ ہو سکتا ہے, پر ہیلدی لائف سٹائل کو پرہیزی لائف نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ شاید اب کیٹو ڈائٹ کرنی ہے آپ نے, جو میڈیٹیرین ڈائٹ کرنی ہے. ایک کوئی بدیسی ایک فلاں ملک کے لوگ جو خاص ڈائٹ کرتے ہیں, اب آپ نے بھی وہ ڈائٹ کرنی ہے تو شاید اب آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں گے. ہرگز نہیں. ہمارے خطے کی فوڈ دنیا کی سب سے مزیدار, سب سے ہیلدی اور سب سے اچھی فوڈ ہے. اسی کو کھانا ہے, اسی کو خوش ہونا ہے, لیکن ایک طریقے سے, ایک مینج کر کے. یہی ہیلدی لائف سٹائل کا اصل میں جو ایسنس ہے, جس کو لوگ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں اب, اور لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ کیٹو ڈائٹ سے وزن بھی کم ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس ہوتی ہے, فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن بندے کی زندگی کسی کام نہیں رہتی. وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, خوشی ختم ہو جاتی ہے اس بندے کے, اس کے چہرے سے, اس کی لائف کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک کورس کی شکل میں ایک ٹیمپریری کوئی 10-15 دن کے لیے, کوئی مہینے کے لیے کوئی ایک ایکسپیریمنٹ آپ ایسا کر لیں کہ آپ پیٹرول پہ چلنے والی گاڑی کو آپ سی این جی پہ لے آئیں, آپ گلوکوز پہ چلنے والی گاڑی کو آپ کیٹونز کے اوپر لے آئیں. ٹیمپریری کوئی فیس چینج کرنے کے لیے کرتے ہیں, پرماننٹلی آپ نہیں کر سکتے. تو ایک ہیلدی لائف سٹائل میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم انڈرسٹینڈ کریں اپنے آپ کو. ایک صحت مند جو طرز زندگی ہے اس کے ساتھ ہم بیماریوں سے بچ کے ایک خوش و خرم اور ایک اچھی لائف کیسے گزار سکتے ہیں ہم. میری اس بات سے ابھی تک تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے خطے کی فوڈ نہیں چھوڑنی. اپنی خطے کی فوڈ ہی ہم نے کھانی ہے, اور اس کو ایک خاص طریقے سے ہم نے کھانا ہے. ہیلدی لائف سٹائل 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. ایک ہے فوڈ, دوسری آپ کی ایکٹیویٹی, اور تیسرا آپ کا مائنڈ سیٹ. یہ 3 چیزیں ہیں. وہ بابا فرید نے کہا تھا نا کہ 5 فریق اسلام دیتے, 6واں فریدہ ٹک, جے نہ لبے 6واں تے سبے جاندے مکھ. سٹریس, اکیلی سٹریس ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی اچھی فوڈ کھا لیں, جتنے مرضی جم کر لیں, ساری بیماریوں کی جڑ سٹریس ہے.
اب مینٹلی آپ سٹریس رہتے ہیں, آپ کو یہی سٹریس ہے کہ میں نے صحت مند ہونا ہے, تو وہ بھی آپ کی زندگی جہنم بن گئی. سب سے بڑی سٹریس میں نے اکثر دیکھا, لوگ ڈر کے میں نے یہ میں نے وہ جو میں نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے اس 15 سالوں میں, جب سے میں نے ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر بات کرنا شروع کی اور اس کو دیکھنا شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا, کہ آپ نے اپنے 24 گھنٹے کو پلان کرنا ہے, متوازن کھانا ہے اور کھانے کی پلیٹ بنانی ہے. کھانا بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے, کھانے بنانے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو کھانا پڑا ہے اس کو آپ نے اپنی پلیٹ میں کیسے ڈالنا ہے. میل پلیٹ از مور امپورٹنٹ دین اٹ سیلف میل. اگر وہ آپ کو بنانا آ گیا ہے تو اب کچھ بھی آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, آپ اس کو بنا سکتے ہیں, ہیلدی بنا سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیسے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ زیادہ میری بھی ڈسکشن ساری چلتی ہے فوڈ کے ساتھ ہی, تو اس فوڈ کو لے کے چلتے ہیں. ہوا کیا کہ اس خطے کے لوگ باقی سارے خطوں کی طرح بھی بنیادی طور پہ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے مواقع بہت سارے دوسرے ملکوں سے ڈیفرنٹ رکھے ہیں. جو آپ کی فوڈ بنتی ساری وہ دراصل دھوپ سے بنتی ہے. تو ساری ایگریکلچر کیا ہے کہ جو دھوپ ہے, سن شائن ہے, وہ جو انرجی ہے اس کو آپ نے ایک کھانے کی انرجی میں کیسے بدل دینا ہے, دھوپ کو کھانے میں کیسے بدل دینا ہے. ایگریکلچر ساری یہی ہے. تو وہ دھوپ یہاں بہت تھی, زمین یہاں بہت, پھر پانی یہاں میٹھا, دنیا کا میٹھا ترین پانی. تو یہ ساری چیزیں آئیڈیل فصل کاشت کرنے کے لیے. تو اس کے لیے مشینری ہوتی نہیں تھی, تو جسمانی مشقت, تو سارا کام جسمانی مشقت سے ہی ہوتا تھا. تو جسمانی مشقت کرنی تھی تو لوگ اس لحاظ سے ہی کھاتے تھے. تو لوگ وہ کھاتے تھے تو اس کے اندر سب سے جو پرائم چیز تھی وہ نمبر 1 پہ وہ ڈیری تھی اور ڈیری پروڈکٹ تھے. پہلے نمبر پہ پر سب سے زیادہ کو جو مطلب کہ وہ تیرے منہ کی شکر, مطلب خوش ہو کے بھی جو بات کرنی تھی نا, سب سے بڑی بات اگر کو کر دینی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ گھی اور شکر, یہ 2 چیزیں دے دیں. اس سے زیادہ مزیدار اور اس سے زیادہ صحت بخش طاقتور چیز کوئی نہیں. اور جتنی پہلوانی ہوتی تھی, میں نے خود دیکھا ہے کہ جس گھر میں لڑکا پہلوانی کرتا تھا وہ کہتے سی ایدی اسی مجھ وکھری کر دیتی ہے. یس, اس کی ایک علیحدہ بھینس ہوتی تھی. 10 لیٹر دودھ ایک بندہ پی جاتا تھا. یس, میں نے خود دیکھا ہے. بالٹی اس نے صبح جتنا کام کرنا, نہر کے اوپر 10 کلومیٹر اس نے بھاگنا اور سہاگا پیچھے باندھ کے اس نے پورا وہ کرنا, ایکسرسائز کرنی, ڈانٹ پیٹ بیٹھنے, اور آ کے پھر اس نے مکھن اتنا کھانا سارا. یعنی مین فوڈ اس کی ڈیری تھی, مین فوڈ. اس سے ہٹتا تھا تو پھر روٹی کی, گوشت کی, باقی چیزوں کی باری آتی تھی. مین فوڈ ہی اس کے گرد گھومتی تھی. تو یہ اس کی ایک بہت پرائیڈ والی فوڈ تھی. تو جو کام کرتے تھے ان کا بھی سب سے زیادہ یہی تھا کہ صبح دہی کھانا ہے, ادھرڑکا جسے کہا کرتے تھے کہ دہی اور دودھ تھوڑا مکس کر کے مکھن کے ساتھ وہ کھا, کیونکہ فزیکلی کام کرنا ہوتا تھا. تو صبح زیادہ کھانا, پھر اس میں دوسری شکل آ گئی, پراٹھے کی شکل آ گئی. تو یہ ہمارا روایت میں بنا تھا کہ صبح خوب پیٹ بھر کے جانا ہے آپ نے, اور اس کے بعد بہت کام کرنا ہے, اس کے بعد پھر کھانا آنا ہے, اور اس کے اندر بھی یہی فوڈ زیادہ ہوتی تھی. دوپہر کو آپ کام کر کے تھک کے آ جاتے تھے, پھر آپ نے وہ مسیاں روٹیاں بننی ہوتی تھیں, یا اچار کے ساتھ روٹی کھائی, کبھی سالن بن جانا, کبھی بھرتا, کبھی بینگن کا. تو یہ دوپہر کو کھانا ہے آپ نے, تھک جاتے تھے آپ. اور شام کو ریلیکس ہونے کے لیے بھٹیاں ہوتی تھی جہاں دانے بھونے جاتے تھے. تو وہ دانوں کبھی میٹھے کبھی نمکین وہ کھا کے رات کو ایک لسی دودھ کے کٹورے کے ساتھ ایک روٹی کھا کے عشاء پڑھ کے سو جانا ہوتا تھا. یہ روایت چل رہی تھی, یہ روایتی طور پہ ہمارے گھروں میں یہ چل رہا تھا سارا.
کبھی خاص دن آتا سوئیاں حلوہ بن گیا, سردیاں آئیں تو وہ پنجیری بن گئے, وہ جسے وہ ہمارے کہتے ہیں, کوئی پانڈا کہتے ہیں, کوئی حلوہ کہتے ہیں, کوئی برتن کہتے ہیں, وہ میٹھے بنا کرتے تھے سارے. یہ روایت چلا کرتی تھی. گرمیوں میں بینگن کا بھرتا, کدو کا رائتا, یہ چیزیں بنا کرتی تھی ساری. یہ روٹین تھی. اٹس آل ایکسیلنٹ ہیلدی فوڈ, ایکسیلنٹ ہیلدی فوڈ. یہ ساری کی ساری فوڈ دنیا میں اتنی اس سے ہیلدی فوڈ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کی ٹو پہ کہیں چلے, اس سے ہیلدی فوڈ کوئی نہیں ہے. نیچرل فوڈ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بنائی ہے, یہ ہیلدی فوڈ تھی. لیکن اس کے لیے چاہیے کیا تھا؟ فزیکل ورک. کام بہت کرنا تھا. 5-5 6-6 گھنٹے کھیتوں میں کام کرنا ہے آپ نے. یہ کام اس کے لیے یہ فوڈ تھی. اب تبدیلی کیا آئی؟ ہیلدی لائف سٹائل کو ہیلدی لائف سٹائل کیسے ہم نے بنا دیا؟ وہ ایسے آیا کہ آپ کے پاس فیسلٹیز آتی گئیں. ہاتھ سے کام کی جب ٹریکٹر آ گیا, وہ بھی چھٹ گیا. آپ شہروں میں آ گئے, آفس میں بیٹھ گئے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گئے. آپ نے اپنی باڈی کو نیچرل ٹمپریچر میں, آپ نے کبھی وہ سنا ہے کہ یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے چھپکلی کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ مینڈک کا باڈی ٹمپریچر آپ کا کتنا ہے؟ انسانوں کا باڈی ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 37. ایک ہی رہتا ہے نا. اگر 1 ڈگری اوپر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بخار ہو گیا. 1 ڈگری, صرف 1 ڈگری اوپر ہو گیا, کیا آپ کہتے ہیں؟ بخار ہو گیا. ہلکا سا اب 99 کو بخار ہے, جسم ٹوٹن ڈیا ہے, کم کرنا دل نہیں کرتا. کتنا؟ آدھے سے بھی کم. اور اگر لو ہو گیا پھر کیا جی؟ فلو ہو گیا. یعنی کہ اتنا آپ کا فکس ٹمپریچر ہے. جو ریپٹائلز ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو باہر ٹمپریچر وہی اپنا ٹمپریچر کر لیتے ہیں. اللہ خیر سر, باہر 50 ہے اپنا 50 کر لیا, باہر 40 ہے اپنا 40 کر لیا, باہر 30 ہے اپنا 30, باہر 20 ہے اپنا 20. ان کی اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم ایسا بنایا ہے جو باہر ٹمپریچر وہی کر لیتے ہیں. آپ 1 ڈگری بھی اوپر نیچے ہو گیا آپ کی باڈی گئی. سمپل 1 ڈگری بھی آپ. اچھا اب باہر ٹمپریچر ہے 40, آپ نے کم کرنا ہے تو کس نے کم کرنا ہے؟ کیلریز لگنی ہے نا, زور لگنا ہے. آپ بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا زور لگ رہا ہے. ٹالی تھلے بیٹھے ہو, بورڈ تھلے بیٹھے ہو, پسینہ آ رہا ہے, باڈی ٹمپریچر خود ہی نیچے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایئر کنڈیشن میں آ گئے ہو, آپ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہی روم ٹمپریچر ہو گیا, باڈی کا زور ہی نہیں لگ رہا. لو ٹمپریچر ہو گیا, باہر ٹمپریچر کتنا ہے؟ 15 ہے, 12 ہے, 11 ہے. آپ کی باڈی کیلریز برن کر کے آپ کا ٹمپریچر اوپر لے کے آ رہی. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, تھرمل تھراپی, آپ کی باڈی خود ہی برن کر رہی ہے. اب ہیٹر لگا لیا آپ نے, جو باڈی ٹمپریچر ہے وہی آپ نے روم ٹمپریچر کر لیا. باڈی کو آپ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ خود ایڈجسٹ کرے. اسی طرح آپ باڈی کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ پیتھوجنس کو, بیماریوں کو, اس کے اگینسٹ اپنا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو کر کے اس سے بچائے. فوراً اینٹی بایوٹک, فوراً میڈیکیشنس, اور آپ کا امیون سسٹم پھر نیچے چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ بیرونی امداد کے عادی ہوتے جاتے ہیں. منگن دے عادی ہو جاتے تسی. مانگنے والا کبھی امیر نہیں ہوتا, کبھی ترقی نہیں کرتا, ہمیشہ پیچھے جاتا ہے. تو آپ کی باڈی بھی مانگنے کی عادی ہو جاتی ہے. گرمی لگ رہی, پنکھا چلاؤ, اے سی میں آؤ. جو عادی ہے وہ باہر رہتا ہے, کوئی بات نہیں, ٹالی تھلے بیٹھ جاؤ, ہو جائے گا ٹھیک ہے. نیچرل. تو فوڈ میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جب اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, اتنی فیسلٹیز آپ کو آ گئیں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے روم ٹمپریچر کنٹرول کر دیا, اور اس کے بعد پھر فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں. اب ہر کسی کا دل نہیں کر رہا کہ وہ 2 گھنٹے واک کرے اور جم کرے. باڈی کی نیڈ ہے کہ ایگزرٹ کرے. اب آپ احسان چڑھا کے آپ 15 منٹ واک کر لیتے ہیں, آپ 5-6 منٹ ہلکا پھلکا جم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں جم کر کے آیا. باڈی کی نیڈ فزیکل ایکٹیویٹی ہے ساری نا. اب اس کے لیے اب آپ ہر کوئی وہ بھی نہیں کر پا رہا, تو چاند ایک ہے جو کر پا رہے. اچھا اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے جس نقطے کے اوپر آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں
गाड़ी एयर कंडीशन, पैदल नहीं जा रहे, साइकिल पे नहीं जा रहे। बहुत साल हुए तो मुझे लोग कहने लगे यार आज बड़ा ही ज़लज़ला है। मैंने कहा आज कहाँ ज़लज़ला है? नहीं आज बड़ा ही बहुत ज़लज़ला है। मैंने कहा मैं सारा दिन सोया भी नहीं, मुझे क्यों नहीं पता चला? उन्हें किसी तो बुरा ही हाल है, इतना ज़्यादा आपने सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। भाई कितने बजे आया? कहने लगे जी वो 11 बजे दिन को बड़ा ज़लज़ला है। मैं ओहो वो तो मैं टांगे ते बैठा था, वो थे यार बड़ा ज़लज़ला होता है, मैंने तो नहीं पता लगा, तो पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ। अब आपकी सवारी ही नहीं है वो जो आपको हलाए जलाए। घोड़े पे बैठ के भी, घोड़े पे आप बैठे अक्सर लोगों के मोरे हिल जाएंगे, जो लोग आदी नहीं है इतनी एक्सरसाइज, वो बड़ी मजबूत कट्ठी का बंदा घोड़े पे बैठ सकता है। आपने साइकिल पे जाना है, आपको 10 किलोमीटर आपको जाना पड़े ना, जलो पार्क जाओ साइकिल पे, आप 3 दिन आपको बुखार नहीं उतरेगा, कि वो साइकिल, पैदल, साइकिल, घोड़ा, टांगा, ये आपकी सवारी थी, वो ख़त्म हो गई, गाड़ियाँ आ गई, जिस्म का तो जोर लग ही नहीं रहा। ऑफिस, कमरा, मार्ट, हॉस्पिटल, हर चीज़ का टेम्परेचर कंट्रोल, एक्टिविटी ख़त्म। जॉब, हाल चलाने की बजाय अब लैपटॉप, कंप्यूटर पे, आईटी, सब कुछ उधर आ गया। अब ये सब कुछ हो गया तो साथ इसके क्या होना था? फूड चेंज होनी थी, कि अब आप की बॉडी के अंदर अब आप इतना फ्यूल कंज्यूम नहीं कर रहे। पहले आप रोज़ाना 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे तो आप टैंकी फिल करते थे, अब आप सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है, तो फ्यूल कम डलवाना था ना आपने। तो फ्यूल क्या है बॉडी का? ग्लूकोज, कार्ब्स। तो चूंकि अब आपकी फिजिकल एक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई, तो कौन सी चीज़ आपने अपनी फूड से निकाल देनी थी या कम कर देनी थी? कार्ब्स। लेकिन वो तुम्हारे टेस्ट बड आदी थे, पराठे के, रोटी के, दलिए के, हलवे के, मिठाइयों के, सारे चावल, उसके हम आदी थे। वो तो हमने बंद नहीं किए, बल्कि किया क्या? अक्लमंदी हमने की, हमने उसको ज़्यादा कर दिया। अब गाड़ी हमारी चल नहीं रही, हमने तेल ज़्यादा डलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाकी ज़ाया हो जाना है, ज़ाया होता रहे, हमें तेल डलवाना पसंद है। क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है, आपकी बॉडी जितनी चलती है उतना तेल डलवाएं। रोज़ाना शाम को आपका पेट्रोल ज़ाया कर दिया जाएगा, रोज़ नया पेट्रोल डलवाना है। ओके, मेरी गाड़ी पहले 100 किलोमीटर चलती थी तो मैं उसमें 10 लीटर तेल डलवाता था, तो आज ऐसा करो, आज मैंने घर ही रहना, आज 12 लीटर तेल डलवा दो। ओ भाई जाना तुमने कोई है नहीं, तेल 12 लीटर डलवाओगे, शाम को वो ज़ाया हो जाएगा। उन्हें कहा नहीं जी मुझे पसंद है तेल डलवाना, मुझे बहुत पसंद, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, डालो तेल, आप शाम को ज़ाया हो जाएगा। उसकी किस्में बदल दी, बॉडी चल नहीं रही, बॉडी चलती ग्लूकोज के ऊपर। अब बॉडी चल नहीं रही, यहाँ तो आपने पहाड़ चढ़ना है या तो आप सारे दिन हल चलाना है, तो आप सुबह भी रोटी खाओ, दोपहर भी खाओ, रात भी खाओ, चावल भी खाओ, बिस्किट भी खाओ, मिठाई भी खाओ, चीनी भी खाओ, काब्ज लो, आपकी बॉडी ने चलना है। आप छुट्टी है आज, कहीं भी नहीं जाना, सुबह भी पराठा खाना है, दोपहर को स्पेशल बिरयानी बननी, कोई बच्चे की सालगिरह भी कुछ रख लेनी है, शाम को पास्ता भी आ जाना है। 80% फूड आपकी कार्ब्स। अब वो किधर जानी? वो बात आपकी बॉडी के अंदर, अब आप सबको पता है अल्टीमेटली फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी है, और सारी बीमारियों का जड़ उधर ही है। अब ये पॉलिटिकल बात हो जानी, पाकिस्तान में जितनी बुराइयां हैं वो एक ही घर जाती हैं, तो इस तरह बॉडी की जितनी बीमारियां हैं वो सारी हाई कार्ब्स के गिर दी जाती हैं, ज़्यादा कार्ब्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लिए। अच्छा, अब उससे डरते हुए अब मैं थोड़े से आपको चस्कोरे लगवाने हैं। उससे डरते हुए कोई लो कार्ब डाइट्स हमने भी बंद कर दी। लो कार्ब डाइट हमने ज़्यादा लेनी थी। हमने करना क्या था? हाई कार्ब डाइट कम कर देनी थी, लो कार्ब डाइट ज़्यादा कर देनी थी।
لو کارب ڈائٹس جو کہ دنیا آپ کو نہیں بتاتی، آپ کو بتاتی میڈیٹیرین لے لیں، کیٹو لے لیں، فلاں لے لیں، اور ہمارے اپنے خطے کی جو لو کارب ڈائٹس ہیں وہ دنیا کی مزیدار ترین فوڈز ہیں، انہیں کیوں نہیں لیتے؟ کس کس کو پسند ہے آلو چھولے؟ ہاتھ کھڑا کریں. چنا چاٹ پسند ہے تو لو کارب آلو چھولے چنا چاٹ لو کارب ڈائٹ ہے، پیٹ بھر کے کھائیں، روز کھائیں، دوپہر کھانا چھوڑ دیں وہ کھائیں، لیکن اس میں چینی والی چیز نہ ڈالیں، املی ڈالیں، پودینہ ڈالیں، اس میں تھوڑا دہی ڈالیں، آلو تھوڑے کم کریں، چنے ساتھ آپ نے کیا ڈالنا ہے اس کے؟ پیاز ڈالنا ہے، ٹماٹر ڈالنا ہے. اب ان فیکٹ آلو چھولے کیا چیز ہے؟ سیلڈ ہے آپ کا. پوڑے ہو سانو کسی نے دسے ہی نہیں، یہ ہمارا سیلڈ ہے، بہترین سیلڈ ہے. ہمیں یہی بتایا گیا کہ سیلڈ مطلب صرف کھیرا کاٹ کے رکھنا اور گاجر اور مولی رکھنا، یہی سیلڈ ہے. اور نہیں بھائی، آلو چھولے سیلڈ ہے، مزیدار بناؤ. بد مزہ کھانے کو کس نے آپ کو کہا ہے؟ آلو چھولے مزیدار آپ کا لو کارب فل فوڈ ہے، جس میں پروٹین بھی ہے، کمپلیکس کاربز ہیں، مکمل خوراک ہے. کھانے کی بجائے یہ کھائیں. ہر روز مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ میں نے جی 20 کلو کم کر لیا، 30 کر لیا، 40 کیا. میں سب کو یہ کھلاتا ہوں. دوسرا لو کارب ایک بہت اچھی ڈائٹ، دہی بھلے. دہی بھلے لو کارب ڈائٹ ہے، یہ ہائی کارب ڈائٹ نہیں ہے. دہی بھلے کی پلیٹ میں دیکھیں کیا ہے، سب سے زیادہ اس میں چیز کیا ہے؟ سلاد. دوسرے نمبر پہ ہے پکوڑیاں. دیکھیں نا سب سے زیادہ کیا ہے اس میں؟ سلاد ڈالتے ہیں، پیاز ڈالا ہے، پیاز لو کارب ہے نا، ہائی فائبر ہے، کمپلیکس کاربز ہیں. باقی اس میں کیا ڈالا ہے اس نے؟ پکوڑیاں اور بڑے. وہ کس سے بنتے ہیں؟ دال کے. اب آپ اسے گندے آئل میں نہ بنائیں، گھر بنائیں اچھے والے میں، گھی میں بنائیں، پکوڑیاں بنائیں بیسن کی، چنے کی دال کی یا ماش کی دال کی، آپ نے وہ بڑے بنائیں، پانی میں ڈالیں، لو کارب ہے. اور ساتھ اس میں کیا ڈالا ہے؟ دہی ڈالا ہے. اب کیمیکل والا دہی نہ ڈالیں بھائی، نیچرل دہی اس میں ڈالیں، ڈیری ہائی لو کارب ہے. پروٹین بھی آ گئی، کارب بھی کم آ گئے، سیلڈ بھی آ گیا، کمپلیٹ فوڈ. دہی بھلے آپ کی مزیدار لو کارب ڈائٹ ہے. اچھا اور جی کون سی مزیدار ہے؟ مسی روٹی. مسی روٹی میں کیا ہوتا تھا؟ گندم کی روٹی کے اوپر بیسن ڈال دیا، اس کے اوپر پیاز ڈال دیے، اناردانہ ڈالا، مرچیں ڈالی، وہ روٹی بن گئی. آدھا اس میں آٹا ہے، آدھا اس میں بیسن ہے، ساتھ اس کے باقی پیاز ہے، اناردار ہے، منرلز بھی ہے، باقی بھی سب بھی ہیں. عام سادہ میدے کی بجائے دیٹس آلسو ریلیٹیولی لو کارب، یہ بھی لو کارب ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ ٹکا لو کارب ہے. ایک بہت بڑی لو کارب ہائی پروٹین ہائی کولیجن. کولیجن کیا کرتی ہے؟ اسکن ٹھیک کرتی ہے، بال ٹھیک کرتی ہے، نیلز ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا چیز؟ اسکن، بال، آپ کے ناخن، یہ سارے اسکن گلو کرنا شروع ہوتی ہے، ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ لو کارب ڈائٹ ہے، ہائی پروٹین ہائی کولیجن، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر آئرن بھی موجود ہے. پائے وڈے پائے جی، بیف کے پائے، لیکن ساتھ نان نہیں. پائے بہترین فوڈ ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ نمبر 1 فوڈ کون سی ہے تو وہ پائے ہیں، ہر لحاظ سے. گڈ کولسٹرول کا پیشنٹ کھائے، بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھے گا. آپ کو ڈرا دیا گیا ہے کہ اوے تے پائے کھاندا ہے، فلانا کھاندا ہے، نہاریاں کھاندا ہے. پائے کے بعد دوسری اچھی فوڈ کون سی ہے؟ نہاری.
ये लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन फूड, अच्छी फूड्स हैं हमारी, इनको बिला वजह आपने कल्प्रेट बना दिया गया। ये अच्छी फूड्स हैं सारी। अब पाए जब खाने हैं तो उसके साथ आपने नान नहीं खाने, बस खाली पाए खाएं, सलाद के साथ पेट भर के खाएं पाए, जब मर्जी खाएं पाए। हेल्दी फूड है भाई ये, इसमें नुकसान वाली चीज़ क्या है? प्लांट बेस्ड भी, एनिमल बेस्ड भी हमारी रवायती डिशें बहुत अच्छी हैं। अब ये बहुत सारी जो खाने थे, एक और जो हमारे घरों में रवायती खाने थे जिनको रिवाइव होना पड़ेगा, वो थे दाने भूनने का कल्चर। वो क्या किया जाता था? थोड़े मकई के दाने, थोड़े गंदम के दाने, थोड़े चने, इनको भूना जाता था शाम को। हर घर में गांव में मुझे याद है भट्ठियाँ होती थी, तो वो दाने होते थे और वो दाने खाए जाते थे। हाई फाइबर, रा, सबसे बड़ी चीज़, कार्ब्स इनके अंदर हैं कार्ब्स इनके अंदर। लेकिन आपकी बॉडी एक्टिविटी की ज़्यादा है, आप खा सकते हो, इन मॉडरेशन खा सकते हो आप। ये हेल्दी फूड है ये भी। इतनी सारी हमारी जो डिशें हैं। अच्छा, एक और, फजूल आदमी पराठा खाता है, पराठे को बदनाम कर दिया। अब आप कहेंगे ये कौन सी फूड है जिसको मैं छोड़ रहा हूँ? सादा रोटी है, दूसरा पराठा है। किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे कहते हैं? कि जो फूड आपकी बॉडी में शुगर में जाके खून में जाके कितने % शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप ग्लूकोज को पानी के अंदर घोल के पी लें, तकरीबन 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कोई जितना ग्लूकोज है सारा ब्लड शुगर में चला जाना है। खाली पानी पिए, 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? शुगर का, शुगर कितने %, जो वाइट शुगर है, शक्कर है, गुड़ है, तीनों चीज़ें एक जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। एक जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है गुड़ का, शक्कर का, चीनी का। आपकी बॉडी के अंदर जाके कितने % ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा? 59। बाकी इसके अंदर फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज की और प्रॉब्लम है, वो और चीज़ बनेगी। 59 सबसे बुरी चीज़ जो समझी जाती है आपकी शुगर में, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में, आपकी डाइट में, वो शुगर को समझा जाता है ना। दुनिया का कोई बंदा हो ना, कहे जी मैं परहेज शुरू करता है, कहाँ से शुरू करेगा? 4 चीनी 2 चमचे पाता था, मैं 1 कर देता है। 1 डालता तब आधा कर दिया, या 1 भी नहीं डालता। सबसे पहला परहेज क्यों परहेज किया? कि चीनी चंगी नहीं होती, ये शुगर करती है। ठीक है, कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका? 59। और आप दिन में फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 चाय के कप पीते हो, तो आप 3 चम्मच ले लोगे, इतना ही है ना। 1 चम्मच कितना होता है? 5 ग्राम का। 5 ग्राम यानी 15 ग्राम चीनी एक दिन में अगर आप 3 कप चाय पीते हो, और उसका तकरीबन 60% शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो 15 ग्राम में से तकरीबन 10 ग्राम आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज देगा। 10 ग्राम, 3 चम्मच चीनी। गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 71। चीनी का कितना है? 59। गंदम का कितना है? 71। मैदे का कितना है? तकरीबन 80। चावल का कितना है? 70 से 80। और गंदम और चावल कितने खाते हो, कितने ग्राम खाते हो रोज़? वो 15 ग्राम चीनी दे तो जुल्म हो गया ना। एक रोटी आमतौर पे 50 से 70 ग्राम की होती है। मेरे घर जो मोटेता से लोग खाते हैं वो 100 ग्राम की होती है, 2 खाएंगे 200 ग्राम की होगी। एक रोटी अगर वो सफ़ेद आटे की है, 80% वो शुगर में बदल जाती है। 100 ग्राम की रोटी है, बाकी पानी शानी निकाल लो, तकरीबन 70 ग्राम तो उसने आपको, जिस्म में उसने आपको ग्लूकोज दे दिया। तो अब परहेज़ किस चीज़ का कर रहे हो? 3 चम्मच चीनी का, जिसमें टोटल पूरे दिन में आपको 10 ग्राम देने हैं ग्लूकोज।
अब दिन में कितनी रोटियां खाते हो आप? कम से कम 3। 2 स्लाइस भी एक रोटी जितना सेम है। 1 नान 2 रोटियों जितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका। 1 केक पीस और रोटी तकरीबन बराबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 4 बिस्किट, मासूम से बिस्किट 1 रोटी के बराबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको कुछ भी नहीं समझते। और परहेज़ किस चीज़ का हो रहा है? 3 चम्मच चीनी का। तो दिस इज़ वी नीड टू नो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस फूड का कितना है। ग्लूकोज ज़रूर लें जितनी बॉडी को ज़रूरत है। कम ज़रूरत है, दही भल्ले खा लो, आलू छोले खा लो, टिक्का खाओ, मिसी रोटी खाओ, दाने चावल लो, बॉडी की नीड के मुताबिक। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सादा रोटी और उसी रोटी का पराठा, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? सादा रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों ज़्यादा होगा? आटा सेम है, वज़न सेम है। एक सादा रोटी है, एक पराठा है। सादा रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जिसको आपने घी लगा दिया ना, पराठा बना दिया, वो स्लो रिलीज़ होगा, स्लो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, अब उसमें टोटल कैलोरीज ज़्यादा होगी, वो अलग एक बहस है। मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। जैन डाइटिशियन बैठे हैं, ये पता नहीं मेरी बात से एग्री करे ना करे। सादा रोटी क्विकली आपकी जिस्म में बड़ी जल्दी शुगर दे देगी। मतलब 70 ग्राम की है ना, तो उसे 50 ग्राम शुगर अगले 1 घंटे में दे देनी उसने। पराठा है, उसे 2 घंटे में देनी है। तो आपकी बॉडी में जितनी स्लो शुगर रिलीज़ होगी, उतनी वो फूड आपके लिए बेहतर है। तो बदनाम किसको कर दिया? पराठे। हम किस तरह जा रहे हैं? हमें किस चीज़ से डरा दिया गया? पाए से, न्यारी से। आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ने एक एक सेल तक पहुंचना है। किसने पहुंचाना है? खून ने। एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है खून ने। और खून के अंदर कौन सी चीज़ है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का अहम तरीन पार्ट क्या है? आयरन। मैनू जी गोश्त वड्डा नहीं पसंद, मैं सिर्फ सब्जियां खाते हूँ। जो गोश्त नहीं खाता, आयरन डेफिशिएंसी। सब पीरों ने बंद किया। पीरों ने बंद किया। यस, पीरा ने बड़ा गोश्त बंद कर देता है। यस, दिस ये भी एक बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा आयरन कलेजी में है। बड़ी ईद के अलावा शायद ही कभी किसी ने कलेजी खाई हो। जिसका आयरन लेवल पूरा नहीं आ रहा, और जैसे आपने नाक चढ़ाया, ज़्यादातर लोग कलेजी सुन के ऐसे ही नाक चढ़ाते हैं, ऐसे ही चढ़ाते हैं। लेकिन जिसका आयरन लेवल कम है, अपना हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करना है, उसको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार कलेजी खानी पड़ेगी, इम्प्रूव हो जाएगा। कलेजी के बाद बीफ में, आपको बीफ डायरेक्ट नहीं पसंद, जैसे मैं करता हूँ, शामिया बनवा के रख लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ फूड के अंदर गोश्त कम है, आयरन कम है, प्रोटीन कम है, शामी निकाली, गरम की, साथ रख ली। शेप बदल लेना भाई उसकी, स्टेक बना कर रख लें। ज़्यादा मॉडर्न होना है तो तरीका अच्छा करना है ना। आपका बाहर गए हैं ना, फूड खाने का दिल कर रहा है, अच्छा, बहुत बड़ा मसला होता है कि बाहर गए हैं तो क्या खाएं। ज़्यादातर क्या होगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोस्टली। या स्विच ओवर करना है आपने तो फिर कढ़ाई, नान। ये 2 एक्सट्रीम है ना। व्हाट इज़ द हेल्दी ऑप्शन? आपने बाहर जाना है, नंबर 1 स्टेक, बीफ, मटन, फिश, कोई भी। स्टेक किस चीज़ के ऊपर बनती है? तवे के ऊपर। सेफेस्ट कुकिंग तवे के ऊपर कुकिंग। सबसे बड़ा ड्रामा एयर फ्रायर। सबसे बड़ा ड्रामा एयर फ्रायर। मैं तो बहुत हेल्दी फूड, मेरे घर में एयर फ्रायर है।
एयर फ्रायर बना रहे, एयर फ्रायर का भी टेम्परेचर 350-400, जितना डीप फ्राई का, जितना कोयले के ऊपर जो एक्रिलामाइड बन रहे, एक जैसे बन रहे तीनों में, कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके अंदर आयल का यूज़ नहीं हो रहा, दैट्स इट। अगर आपको आयल से प्रॉब्लम है, आपका लिवर काम नहीं कर रहा, थोड़ा जिगर ख़राब है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे नहीं हैं, तो आप ऑयल अवॉइड करना चाह रहे हो, घी अवॉइड करना चाह रहे हो, तो ठीक है एयर फ्रायर कर लें। अदरवाइज यू थिंक इट्स हेल्दी, नो नॉट एट ऑल। सेम सेफेस्ट कुकिंग कौन सी है? तवे के ऊपर या बेक्ड, या फिर जो आप देसी घी के अंदर रवायती तौर पे गोश्त भून के सब्ज़ी डाल के देसी घी के अंदर बनाई है, मट्टी की हांडी में, वो सेफेस्ट है। अच्छा, अब आपने बाहर जाना है, अब अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। नंबर 1 स्टेक खा लें आप, बीफ का, मटन का, फ़िश का, चिकन का, कोई भी जो आपको पसंद है। साथ स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, सेफ फूड। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टेक के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? क्या आप बारबेक्यू ले सकते हैं, ग्रिल्ड ले सकते हैं, ये उससे मच बेटर ऑप्शंस हैं। बहुत सारी चीज़ों को भोलपन में, मासूमियत में या अंधी तकलीद में हमने हेल्दी फूड को अनहेल्दी बना दिया। और कोई फूड रह गई हमारे खित्ते की जो अच्छी फूड है, जिसको हमने अनहेल्दी कर दिया। एक सबसे अच्छी जो फूड, हेल्दी फूड आपके लिए शायद वो ऑमलेट है। ऑमलेट रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं। लेकिन ऑमलेट में लोगों को ड्रा किससे दिया गया? कोलेस्ट्रोल। सफेदी खा लो, जर्दी ना खाओ, ये ड्रा दिया गया। पहले डराया गया कि कोलेस्ट्रोल 150 को जिस्म की ज़रूरत है, अर्ली 60s में। फिर कहा गया नहीं, एक दिन में बंदा ना 350 तक कोलेस्ट्रोल ले सकता है। बाकी अगर एक अंडा आपको तकरीबन 250 दे रहा है तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब एक लंबी रिसर्च गई, उस रिसर्च ने क्या साबित कर दिया? डराया किससे गया? हार्ट से, दिल से। क्योंकि ऐसी चीज़ से डराएं जिससे डायरेक्ट मौत वाक़या होती है। अगर किसी को कहे ना कि आपके घुटने में दर्द हो जाएगी, या आपका रंग थोड़ा काला हो जाएगा, या थोड़ा सा कोई ऐसा मसला हो जाएगा कि लोग उससे नहीं डरेंगे, वो खैर गुजारा हो जाएगा, एक टांग पे भी ज़िंदगी गुजर जाती सारी। लेकिन हार्ट का मसला ऐसा कि जिसको हार्ट का मसला हुआ उसकी लाइफ एट रिस्क है, किसी भी टाइम वो बंदा जा सकता है। उन्हें क्या जी, हार्ट अटैक का जी ये प्रोपेगेंडा हुआ, ये झूठा प्रोपेगेंडा हुआ कि हार्ट अटैक में सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रोल है। और कोलेस्ट्रोल किस में है? अंडे की जर्दी में, बड़े गोश्त में, बीफ में, जो हमारे पाए हैं उनके अंदर है। ये डरा दिया गया कि ये तो हार्ट के लिए है, ये डरा दिया गया। अच्छा, फिर ये साबित हो गया कि कोई रिलेशन साबित ही नहीं हुआ कोलेस्ट्रोल का, मक्खन का, देसी घी का, हार्ट के साथ कोई रिलेशन साबित ही नहीं हो सका आज तक। हार्ट अटैक होता है किन फूड से? सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस से। और वो क्या चीज़ करती है? हाई कार्ब, चीनी, रोटी, चावल, ज़रूरत से ज़्यादा। ट्रांस फैट्स सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? डीप फ्राइड फूड से, बेकरी आइटम से। आपको ड्रा के पाए से, निहारी से, अंडों से आपको दिया क्या? बेकरी दी आपको। देसी घी से ड्रा के आपको दिया क्या? कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैट बनने सबसे ज़्यादा उसके अंदर रेशो है।
تو اب ہارٹ اٹیک کا جو باعث بن رہی چیزیں سب سے زیادہ سیڈیٹ لائف سٹائل کے بعد سب سے زیادہ کوکنگ آئل، جو وناسپتی گھی، اور اس کے بعد چینی اور ان چیزوں کا ہے. تو وہ ثابت ہی نہیں ہوا. تو ہماری بہت ساری فوڈ جو ایک غلط ثابت کی ہوئی تھی وہ ساری ہیلدی فوڈ بن گئی. آہستہ آہستہ وہ ساری ہیلدی فوڈ بن گئی. تو آپ نے جو ان فیکٹ جن چیزوں سے ہمیں ڈرا دیا گیا کہ شاید یہ ان ہیلدی فوڈ ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہیلدی نکلیں. لیکن جن چیزوں کا ٹوٹلی ہر چیز ہیلدی ثابت بھی ہو رہی ہے لیکن ظاہر پریشر اتنا پیسہ ہے ان کو وہ نہیں کر رہے، اس میں ایک چیز ڈرنکس ہیں. بیکری آئٹم اور ہائی کارب اور پاسٹاز کے بعد سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ڈرنکس ہیں. کسی چیز میں ایک بھی کیمیکل ہو نا، اچھا یہاں بیٹھے ہیں نا، یا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، آپ کے گھر کا ایک فرد آ جاتا ہے، آپ اسے ناراض بھی ہو تو ہو سکتا ہے آپ اسے سلام دعا نہ لو، لیکن آپ کو اس کے گھر میں آنے کا شاید اعتراض نہ ہوگا. لیکن ایک اجنبی آپ کے گھر کے اندر آ جائے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بھائی تو کہ تم منہ چوک کے آ گئے ہیں. آپ کی فوراً ہوگا کہ اس کو باہر نکالو. ہمارے گھر میں خواتین اور یہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ سیم از ود کیمیکل. آپ گوشت کھاتے ہو، دودھ ہے، دہی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، چنے ہیں، کوئی چیز بھی ہے جو اللہ نے آپ کو فوڈ بنائی ہے، آپ کی باڈی اس کو ایز اے فوڈ لیتی ہے. بسم اللہ آئے. آپ اوور کر جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن دی مومنٹ ایک کیمیکل آپ کی باڈی کے اندر آتا ہے، وہ جسٹ لائک اے ایلین، اے فارن پارٹیکل، اے فارن باڈی. آپ کی باڈی کو دیکھتی ہے یہ تو میرے جسم کا حصہ ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا. اب پہلے کیا کرتے ہو کہ اس کو آپ نے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے کہ کیا اس کو یوزفل فوڈ میں کنورٹ کر سکتے ہو. یہ جسم دیکھتا ہے. کچھ کنورٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ کنورٹ نہیں ہوتے. تو پھر جسم اس کو فلٹر کرتا ہے. کس سے؟ دو بڑے آپ کے فلٹر آرگن ہیں، ایک لیور اور دوسرے کڈنیز. اور بہت سارے یہ کیمیکلز وہاں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب کڈنی میں ڈپازٹ ہوں گے، وائٹل آرگن ہے، کڈنی ایٹ سٹیک، آپ کی زندگی رسک پہ چلی جائے گی. لیور میں تو سب سے پہلے آپ کا فیٹی لیور ہوگا، آپ کو ہیپاٹائٹس کا بھی خطرہ، باقی چیزوں کا بھی خطرہ، ڈائجیشن انزائمز، ڈائجیشن اڑ جائے گی آپ کی، آہستہ 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 سارا. تو جو کیمیکل والی فوڈ ہے، کوئی فوڈ جو کہ کیمیکل ہی ہے، وہ آپ کے لیے فارن پارٹیکل ہے، وہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جس کے اندر، اور ایک وہ چیز جس کے اندر ہے ہی کیمیکل، وہ ڈرنک ہے. ٹوٹل کیمیکلز درجنوں کے حساب سے اس ڈرنک کے اندر کیمیکل ہے. جو ریگولر ہے اس کے اندر تھوڑے کم کیمیکل ہیں، جو ڈائٹ ہے زیرو ہے اس کے اندر مٹھاس کے لیے بھی انہوں نے کیمیکل ڈالے، اس کے اندر اور ڈبل کیمیکل ہو گئے. تو وہ آپ کو یہ دے دیا گیا کہ شاید یہ ڈرنکس ہیلدی ڈرنکس ہیں، لو کیلوری ہیں. اور جوسز کہتے ہیں نا کہ کافر اور منافق کو کمپیئر کریں تو زیادہ برا کون سا ہوتا ہے؟ منافق. جوس جو ہے وہ منافق ہے، ڈرنک جو ہے نا وہ کافر ہے. آپ جوسز کو، جو ڈبے والے جوسز ہیں سارے، آپ ان کو ہی سمجھتے ہو یہ آمدہ جوس یا فلانے کا ہے، اب ہیلدی سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ منافق ہے. اس کے اندر بھی کیمیکلز ہی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نیوٹریشن نہیں باقی. اس کو ہائی ٹمپریچر کے اوپر پریزرویٹو ڈال کے اگر ہیں بھی ہے تو بہت سارے تو اس کے اندر ہوتا ہی نہیں کوئی فروٹ. انہیلدی، ٹوٹل انہیلدی. یہ آپ کو ایک جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ جوسیز آر ہیلدی، ایبسولوٹلی نو. ہاں کوئی اگر جم شم کرتا ہے، مسٹر پاکستان ہے، تو وہ فریش جوس ویلکم کرتے ہیں مسٹر پاکستان کو، تو وہ فریش جوسز باقی سب کچھ اپنی ورک آؤٹ کے مطابق لے. عام بندے کو ضرورت نہیں ہے. ہاں مطلب فروٹ کھائے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا فائبر وہ سب کچھ. فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق کیا ہے. آپ نے ایک مالٹا لیا یا 4 مالٹوں کا ایک گلاس
फ़र्क क्या है? आप कहते हैं जी कोई उसके अंदर नमक भी नहीं डाला, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, तो वो जूस ज़्यादा हेल्दी है। आपने जब किन्नू खाना है, एक एक फांक आपने खानी है, उसके साथ फाइबर जाना है, और वो एक जानी एक टाइम पे आपने च्यू करना है, अंदर जाना है, उसने आहिस्ता आहिस्ता आपके डाइजेशन का पार्ट बनना है, उसकी बॉडी में जाना है, उसमें से न्यूट्रिएंट शुगर उसने लेनी, और जितनी देर में आपने खाना है वो आहिस्ता 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 आपकी बॉडी पार्ट बनना है। अच्छा, अब आपने और एक टाइम पे आपने एक ही किन्नू खाया आमतौर पे, अब 4 किन्नुओं का एक गिलास जिसमें फ़ाइबर निकाल दिया डायरेक्ट, वो जब आपने पीना है इमीडिएटली विदिन 5-10 मिनट्स आपके ब्लड में चला जाना है। ना फाइबर है उसके अंदर, और जो उसके अंदर शुगर है, फ्रुक्टोज़ इतनी ज़्यादा है, आपके लीवर को मुसीबत पड़ जानी है कि फ्रुक्टोज़ का बॉडी के अंदर कोई काम ही नहीं है, उससे सारा लीवर में जाना है, और लीवर को मुसीबत पड़ जानी है कि इसको कैसे हमने डिटॉक्सीफाई करना है, वो भी अनहेल्दी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड में जो एक बहुत अहम चीज़ है ना, वो ये है कि केमिकल और प्रोसेस और फ्रोज़न फूड जितनी कम, कैंड फूड जितनी कम, नेचुरल प्योर देसी ऑर्गेनिक जितनी आप ज़्यादा ले सकें। 100% तो नहीं ले सकते। आप शहरों में रह रहे हैं, आप सब्ज़ी लेके आएँ, आपको नहीं पता वो सब्ज़ी कैसे ग्रो हुई, कहाँ ग्रो हुई है। जितनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं कर लें, बाकी मजबूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो आपके सामने हैं, लेकिन एक ड्रिंक पीने में तो आपको कोई कदगन नहीं है ना, वो तो आपको 100% पता है कि ये भाई केमिकल है। वेजिटेबल के ऊपर आपको शक है ना कि पता नहीं अच्छे केमिकल से है, बुरे केमिकल से है, नेचुरल उगाई है, कैसे उगाई है, फिर भी एक चांस है और कुछ नहीं, फाइबर तो मिलेगा ना। वो बंदे एक ने ना वो बकरी चोरी कर ली, बकरी चोरी करके तो उसने उसको ना ज़बह किया, और उसका जो गोश्त है ना वो उसने सदका कर दिया। वो किसी ने कहा कि यार चोरी की बकरी, उसको तुम सदका कर रहे हो, ये क्या ड्राम है। उससे क्या चोरी हुई, गुनाह हुआ, सदका किया, स्वाब हो गया, बराबर खाल मुनाफे च बच गए मैंने। तो आप जो सब्जियां ले रहे हैं उसमें जो भी है उनको डिटॉक्सिफाई करने वाली चीज़ें भी सब्जियों के अंदर ही हैं। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है वो कहाँ है, वो भी सब्जियों के अंदर ही है। चले वो आपस में मुकाबला करते रहे, आपको बचा गया फाइबर, मिनरल्स, कुछ विटामिन्स, कुछ तो बचेगा ना। जो नेचुरल फूड से जितनी मर्जी कंटेमिनेटेड है, डिटॉक्सीफाई भी करने वाली चीज़ें कुछ ना कुछ उधर। एक बहुत बड़ा ड्रामा, गोरों ने ये देखा कि जिस्म के अंदर जो बीमारियां हो रही है ना अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, उससे सबसे बड़ा कल्प्रेट इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियो देख लें, बारबरा ओनील की देख लें, सब की देख लें जी। ऑल कुकिंग ऑयल्स स्टॉप, ऑल ग्रेन्स स्टॉप, कि दे हैव हाई ओमेगा 6 फैटी एसिड and they are causing you inflammation, chronic inflammation. Okay? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की एक ख़ास रेशियो हो 120 की, दैट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन इससे ज़्यादा होगा, जो कि इनके अंदर ज़्यादा है, तो ये आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करेगी। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ा काज ये बंद कर दें। ओके, मुझे कहने लगे जी, मैंने कहा अच्छा, मेरी एक वीडियो थी उसमें मैंने कहा जी कि अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म करनी है ना, तो ऐसा करें, कुछ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको ख़तरा है ना कि कुकिंग ऑयल से, गंदम से, सीरियल से आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप ऐसा करें एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया करें। उनको जी बताएं कौन से। मैंने कैसा करें, अदरक का इस्तेमाल किया करें, बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहें जी अदरक तो ऐसी हांडी च पाई है। ओके, ऐसा करें, मैं अदरक से भी बेहतर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी बताता हूँ। हल्दी का इस्तेमाल करें, उसके अंदर करक्यूमन है, कमाल का एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
उन्होंने कहा जी हमारी हड्डी के अंदर हल्दी भी हम डालते हैं। अच्छा मैं आपको एक तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी बताता हूँ, वो है ज़ीरा कुमन सीड, बहुत बड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसके। उन्होंने कहा जी ज़ीरे के बगैर तो हमारी हड्डी पकती ही नहीं। चलें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, काली मिर्च डाला करें, बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहते जी हम वो भी डालते हैं हम। अच्छा इनसे भी एक बड़ी चीज़ बताऊँ मैं आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दालचीनी। उन्होंने कहा जी दालचीनी भी हड्डी च पाई दी सी। इससे भी ऊपर की एक जिसको नंबर 1 करार दे दी गया है, लौंग। अच्छा जी तो लौंग भी हड्डी च पाई दी सी। अच्छा एक और बताता हूँ, लहसुन, प्याज, तो ये सारी चीज़ें डालते हैं। वो मैं क्या भाई, एक तरफ आप 12 चीज़ें डालते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरी तरफ एक इन्फ्लेमेशन करने वाली, जीतेगा कौन? एक तरफ 12 चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बल्कि 16 मसाले पाते हो तुसी, 16 एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, दुनिया के टॉप एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, और दूसरी तरफ आप एक कुकिंग ऑयल को रो रहे हैं, एक सीरियल को रो रहे हैं कि उसके अंदर ओमेगा 6 आ गया। तो 16 का एक से कोई मुकाबला नहीं है। वो गोरे इसलिए रोते हैं कि ना वो अदरक डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ना लहसुन, ना उनके खानों में ज़ीरा पड़ता है, ना उनके खानों में दालचीनी पड़ती है, उनको अलहदा यूज़ करना पड़ता है। लहसुन अलहदा से काट के उन्होंने खाना है, प्याज को अलहदा एहतमाम से खाना है, हल्दी का अलहदा कहवा पीना है, अदरक का अलहदा पीना है। हमारे तो घर में, हमारे तो किचन में वो आइटम है सारी। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें बिला वजह डरा दिया गया है। हमारा किचन एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से भरा पड़ा है, एंटी ऑक्सीडेंट चीज़ों से भरा पड़ा है। सिर्फ ये है कि हमें जो एक्टिविटी हमने कम कर दी है, और हमने जो रिफाइंड गंदम, जो ओरिजिनल गंदम की बजाय हमने मैदा खाना शुरू कर दिया है, चावल बिरयानियाँ बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दी हमने, बेकरी ज़्यादा शुरू कर दी, ये पास्ताज और बाकी प्रोसेस फूड ज़्यादा शुरू कर दी। हमारा अनहेल्दी सिर्फ वो सेगमेंट है, हमारी अपनी फूड दुनिया की बेहतरीन फूड है। बस मेरी फूड दुनिया की बेहतरीन फूड है इसलिए कि मुझे वो पसंद है, मेरी अच्छी है, तो उसके अच्छे पहलू मैं क्यों ना उजागर करूँ। दूसरी चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी। अब खेतों में काम मैं क्यों करूँ, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे नौकर करें, ट्रैक्टर है, बाकी मैं क्यों करूँ। और मैं वही कई लैके सारा दिन लगा रहा हूँ, अब वो नहीं कर सकता। अब उसके लिए मुझे फिज़िकल एक्टिविटी तो करनी है। अब साइंस ने बाकी जब सब तरक्की कर ली तो इसमें नहीं किया। अब पहले आया कि आप जो जितने मर्ज़ी बिज़ी हैं, जितने मर्ज़ी बिज़ी हैं, आपने दिन में 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को देना है। जुल्म ये है कि लोग सुबह रास्ते में नाश्ता या बग़ैर नाश्ते है, टाइम नहीं है, भागते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें 11-12 बजे होश आती है कुछ खाना है, उस वक्त फिर वो चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक, जूस, कोई समोसा, कोई ऐसी चीज़ हाई कैलोरी फूड जिसमें न्यूट्रिएंट मिनरल्स बहुत थोड़े, वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर वर्किंग लंच में आमतौर पे बिरयानी या नान कुछ साथ थोड़ा पीस हुआ वो खा लिया, फिर वापस रात तक काम करना, थके अरे वापस आने, आते ही कहना रोटी दे, रोटी खा ली। अब रोटी खाने के बाद किसने क्या हिलना है, फिर वहीं बैठ गए, फिर वहीं सो गए, अपनी रूटीन ऐसी बना ली। अब उसके लिए क्या है, वर्कआउट एट वर्क। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में होता था तो पहले लोग हंसा करते थे। इतना बड़ा एक डाइस मैंने रखा हुआ था, मेरा लैपटॉप उसके ऊपर होता था, मैं वहाँ बैठा हूँ। अब आधे से ज़्यादा टाइम तो आपको लैपटॉप पे गुजरता है, मैं आ जाना और लैपटॉप को काम करना, साथ टांगों की एक्सरसाइज की जानी, मैंने की जानी, स्ट्रेचेस की जानी, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ। मीटिंग होनी, 4 दफ़ा मैं चेयर में रहा हूँ फिर डिपार्टमेंट्स का, सामने बैठे हैं सारे, मैं चल फिर के उनके साथ बात कर रहा हूँ, उनके बैठ जाए, मैंने कहा नो आप बैठे, मेरी आदत है, मैंने ऐसे ही रहना है बैठ के। स्टूडेंट आया जी प्रोजेक्ट डिस्कस करना, ओके आएँ, किधर आपकी खराब लगी उधर चले आए, चले उन 2 किलोमीटर टोर के ले जाना, वापस भी आना, रास्ते में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चीज़ चल फिर के हो रही है वो बैठ के क्यों करनी है आपने। जो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, जो खड़े होकर आप काम कर सकते हो, बैठ के क्यों करना है। ज़्यादातर ओवर सिटिंग वाला। इसके बाद आ गया कि आपके पास टाइम नहीं है
तो आप ऑफिस जाते हो, गाड़ी दूर पार्क करें, मोटरसाइकिल दूर पार्क करें, पैदल चलें, स्टेयर्स लें, जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। 1 घंटा वॉक करें, घंटा नहीं वॉक कर सकते, 10-10, 15-15 मिनट के स्प्लिट्स ही कर लें, जितना कर सकें उसके भी फ़ायदे होते हैं। एक और बहुत मज़े की चीज़ आ गई। पहले में ये होता था कि खाने के बाद हिलना नहीं तुसी, अब ये आता है खाने के बाद 10 मिनट वॉक करें ताकि रोटी देर से हजम हो। अब जल्दी नहीं हमने हजम करनी, जल्दी हजम हो गई तो फ़ौरन शुगर पे बदल जाएगी, हमने स्लो हजम करनी है। खाने के बाद 10 मिनट चलें, उसमें क्या होगा कि आपका खून आपकी टांगों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और आपके जो मैदा है वहाँ पे खून कम हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हो गया कि खाने के बाद 10 कदम भागना नहीं शुरू कर देना, वो वॉक करते हैं, उनकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, शुगर कन्वर्शन बाकायदा पेपर है, शुगर कन्वर्शन स्लो हो जाती है उनकी। थोड़ा थोड़ा आप इसकी एक्टिविटी करें। अब लोग नहीं जाते। अब मेरी आखिरी वीडियो कौन सी थी? बिस्तर पर लेटे लेटे एक्सरसाइज। बहाना गया आपको जी, हम कहीं जा नहीं सकते, ओके बिस्तर तो है ना। एक उससे पहले मेरी वीडियो थी कि दीवार के साथ खड़े खड़े एक्सरसाइज, ठीक है, 30 सेकंड की एक्सरसाइज। पहले मैं वीडियो बनाया करता 10 मिनट की, 5 मिनट की। अब मैंने एक शॉर्ट बनाई उसने 30 सेकंड की, कि 30 सेकंड में आपने आपको वार्म अप कैसे करना है। आपने कहाँ पे? कमरे में एक नुक्ता लगा लिया, उसके ऊपर ही। बहाना कोई नहीं। ऑफिस में अब क्या कह दिया? अब 30 सेकंड आफ्टर एवरी 30 मिनट। खुदा दा ना जी अपनी सीट तो उठ पाओ, हर आधे घंटे बाद आधे मिनट के लिए उठ जाए, आधे मिनट के उठ के पानी पी लें, दूसरे ऑफिस में चले जाएं, कहीं चले जाएं, 6-6 घंटे एक सीट पे बैठें। एक्टिविटी को अपने रिसोर्सेज, अपनी चीज़ों के मुताबिक करें। जिम कर सकते हैं, ज़रूर करें। अच्छा, अब अगर ये एक और जो ये बहुत बड़ी साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन इतनी बड़ी साइंस है कि शायद मेडिकल साइंस से भी ऊपर चली गई। अब जितनी देर आप भागते हैं आपका चर्बी नहीं घुल रही। आप समझ रहे हो कि मैं 3 घंटे रनिंग करांगा, मेरी चर्बी ट्रेडमिल के ऊपर। जितनी देर आप भाग रहे हो आपकी चर्बी नहीं घुल रही, आपकी बॉडी जो है ना वो ग्लूकोजन को यूज़ कर रही है। जब आप रेस्टिंग फेज़ में आ जाओगे फिर ट्राइग्लिसराइड की बारी आनी, फिर चर्बी की बारी आनी। यानी कि मुसलसल एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मुसलसल रनिंग भी नहीं करनी। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्रिकेट बड़ी पसंद है, क्रिकेट बहुत खेली मैंने, रमीज़ राजा के साथ मैंने खेली हुई, पाकिस्तान पंजाब अंडर 19 लेवल तक थोड़ी सी। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक ओवर करवाता हूँ। पहले जाता हूँ 3.5 किलोमीटर वॉक, एंड पे वापसी पे एक बाल करवाना है फुल स्पीड, पेस बॉल होता है तेज़, जितना तेज़ भाग सको एक बाल करवाना है। वो मेरे 22 कदम होते हैं, भागा, उसके बाद नॉर्मल चलना शुरू हो गया, सांस बाल हो गया, दूसरा बाल, छोटे छोटे स्प्रिंट्स। अगर मैं लंबी करूँगा तो मेरे घुटनों को, मेरा कार्टिसोल लेवल ऊपर चला जाएगा। वो कहलाता पूरी साइंस है कि आपने अपनी बॉडी को ट्रिम करना है। फिर ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि उनके, या तो ठीक है मसल हर कोई नहीं बना सकता ना, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हर एक ने ख़त्म कर दी है। योगा, डरता हो मैं किसी वीडियो में योगा का नाम नहीं लेता, वो कहें जी हिंदुआनी चीज़ है, 10 अंडे है, सानू फलाना बता रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग कहना पड़ता है हमें उन्हें कि स्ट्रेचिंग कर लें। तो स्ट्रेचिंग करें, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। आप जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं आप एक्टिविटी करें। और तीसरा और अहम जो बात है उसके ऊपर मैं फिर ख़त्म करूँगा, वो मेंटल स्ट्रेस है। अच्छा, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से आया है? इंसुलिन से। आपने फूड खाई, शुगर वाली फूड खाई, आपने बहुत वीडियोज़ इस पर देखी होंगी, बेशुमार प्रोग्राम देखे होंगे कि आपने चीनी खाई, रोटी खाई, पास्ता खाया, हाई कार्ब खाई, तो वो सारा आपके जिस्म में शुगर में बदल गया। अब शुगर को, अब इंसुलिन आ गई। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो हार्मोन है, वो जिस्म में चर्बी बनाने वाला हार्मोन है,
जिस्म की चर्बी को वो घुलने नहीं देता। जितनी देर इंसुलिन हाई रहता है वो जिस्म की जो चर्बी है वो नीचे नहीं आती, ये ज़हन में रखिएगा। अब इंसुलिन ने उसको डिटॉक्सीफाई, उसको लिवर में लेके जाना है, बाकी जगह पे जाना है, ठीक है। तो आपने खाना खाया ही नहीं, बिल्कुल आपने खाना नहीं खा रहे, खबर पैड़ी सुन ली, नून सस्ते सास नूह थे, या किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ गया, बॉडी समझेगा इसको गुस्सा आया ना तो ये या अब मुक्के शुक्के मारेगा तो या फिर भाग जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट। बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है कि या तो अब ये लड़ेगा या भाग जाएगा, दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। बॉडी क्या करेगी? आपके ग्लूकोजन से या जो आपने फूड खाई उससे आपकी बॉडी के अंदर उसने शुगर बढ़ा देनी है वक्ती तौर पे कि अब ये लड़ेगा। पर तुसी मीसने जो के बह जाते हो, ना लड़ते हो ना नसते हो, सड़ते रहते हो बह के, और बार बार स्ट्रेस में रहते हो। अब बॉडी के अंदर क्या बढ़ी? शुगर। अब क्यों बढ़ी? कार्टिसोल बढ़ा था। क्यों बढ़ी? कार्टिसोल बढ़ा था। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है कि जो ही आप स्ट्रेस में आते हो तो कार्टिसोल बढ़ता है। कार्टिसोल फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए शुगर बढ़ाता है। बगैर खाए हुए शुगर बढ़ गई। अब शुगर को ठिकाने लगाने के लिए क्या चीज़ आएगी? इंसुलिन। यानी कि बगैर खाना खाए भी आपके अंदर इंसुलिन आ गई और उसने आपकी बॉडी की, अच्छा अब आपकी इंसुलिन ज़्यादा है, अब ट्रेडमिल के ऊपर, हाय मेरा वज़न ही घट होता है, ये भी स्ट्रेस है ना, कार्टिसोल ऊपर है, मेरा वज़न ही कम हो रहा है, मेरा वज़न ही कम हो रहा है, किन्ना सी मैं ये खाना है, मैंने वो खाना है, सामने खाना है फिर भी नहीं खा रहे, कार्टिसोल ऊपर है। स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस 3 चीज़ों से नीचे आती है, मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है। एक, हमारी अम्मी क्या कहा करती है, 4 पईयां विसर गईयां, यारां दी दूर बुलाई हुईयां। 2-4 थप्पड़ लगे हैं ना, कोई बात नहीं, इधर बुलाएं थी वो दूर हो गई हैं, फ्रेश। स्ट्रेस नहीं देनी ज़्यादा, किसी चीज़ का भी उसमें से पॉजिटिव पहलू ढूंढें, दुनिया ठीक करने की कोशिश ना करें। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे बस में यही है, आप सुने ही ना, ये आपकी मर्ज़ी है। आपके दिल में असर हो जाए, ये अल्लाह ताला ने आपके दिल में, मेरा वासी कोई नहीं। आप बिल्कुल भी ना मेरी बात सुनो, मेरा लेक्चर 1 मिलियन लोग सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जो टॉप पे वीडियो 3 लाख की वो मेरी है। तो ये प्राइड है इस फोरम के ऊपर। तो अब ये मिलियंस लोग भी देख लें, उनमें से एक के ऊपर भी असर ना हो, मेरा कोई रोल नहीं उसके ऊपर। ये जो है ना, दुनिया को बदलना है, दूसरों को बदलना है, ये भूल जाएं। आप जो कर सकते हैं करें। स्ट्रेस सबसे, और तीसरी चीज़ है कि जिसको आपको सुकून मिले, इबादत है, चैरिटी है, सदका है, पौधे लगाना है, इंसानियत की खिदमत करनी है, उसी में है। इसको आप ओढ़ना छोड़ना बना लेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल में इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल खाने से, फिज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, इन तीनों के साथ आती है। अब तीनों को आप मैनेज कर सकते हो। आपने अपने रिसोर्सेज के अंदर, अपने हालात के अंदर, अपनी जेब को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको मैनेज करना है। कोई बदेसी चीज़, कोई किसी की भी कितनी अच्छी चीज़ हो, अपने हालात के मुताबिक करते हैं। खुश रहें, बात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी श्योर। नींद की क्या अहमियत है हेल्दी लाइफस्टाइल में, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखें जी, अल्लाह ताला ने जो इंसान की जो पुरस्कून बनाने के लिए उसका एक सिस्टम बनाया, वो नींद है। ज़िंदगी को एक आसान सा फार्मूला है, 8 ज़रब 8 ज़रब 8। 8 घंटे सोएं, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे इंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंटरटेनमेंट लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी एक बड़ी बैलेंस है। अब इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो हो सकता है। अच्छा, अब आपकी नींद कम होने की वजूहात ढेर सारी हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी जो वजह है
नींद ना आने की, कम आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका मेंटली जो स्ट्रेस है वो है। जिस्म थका ही नहीं है आपका, रिलैक्स आदी बनाया हुआ है। वो मेरा भांजा क्या करता है कि मैं ना 10 घंटे सोता हूँ तो सो के थक जाता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ फिर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो आपने जिस्म को थकाया ही नहीं तो नींद वैसी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ ये है कैफ़ीन, और कैफ़ीन जैसे बेशुमार दूसरे केमिकल्स जो कि नींद के दुश्मन हैं। अगरचे आप कह लेते हो कि मैं तुझे रात को चाय पी के भी सो जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो आफ्टरनून के बाद चाय हम सब आदी हैं, हम रात कहीं से भी आएँ, 11 बजे भी आएँ, 12 बजे चाय पी के फिर सोते हैं, हम इतना आदी बना लिया है। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो सेलुलर लाइट है, जिसमें ये LED लाइट भी शामिल है, मोबाइल की लाइट भी शामिल है, आपकी टीवी की लाइट भी शामिल है। ये भी नींद को उड़ाती है। कैसे उड़ाती है? ये मेलाटोनिन को नहीं आने देती। आपका नींद का हार्मोन मेलाटोनिन है, और मेलाटोनिन के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर केमिकली तो उसके अंदर ट्रिप्टोफैन है, जो कि नीम गर्म दूध के अंदर आपको बहुत अच्छा मिलता है। जो पुराने ज़माने में था ना, आप लेट दूध पीते थे तो ट्रिप्टोफैन उसके अंदर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं, जिसमें मोरिंगा एक, कैमोमाइल है, वो आपको नींद के लिए ये हर्ब्स देती हैं, केमिकल्स देती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो शाम की लाइट है ना, सूरज की लाइट, उसका एक्सपोजर, आप शाम को वॉक करें तो असर के बाद का टाइम बहुत आइडियल है। असर से लेकर मगरिब तक आप ओपन फ़ज़ा में रहें। जो गोरे हैं ना वो 10 मिनट में उनको विटामिन डी भी मिल जाता है, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है। हम जो डार्क स्किन है ना, हमारी एब्जॉर्प्शन भी स्लो होती है। हमें तो घंटा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि इस अल्लाह की धुप ज़्यादा सी, इस अल्लाह ताला ने सानू रंगीन पैदा किया है ना। इतने बहुते गोरे पैदा किए, 10 मिनट से ना विटामिन डी पूरा हो जाना है, बाकी भी हो जाना है, बाकी की करेंगे, तो इसलिए वो स्लो कर दी है। तो एक्सपोजर है, उनको थोड़ी सी धूप आती है, उन्हें थोड़ा सा मिल जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी ये सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा, उसकी बजाय ये जो येलो लाइट होती है ना, आजकल ये आ रहा है कि आप अपने बेडरूम में येलो लाइट लगवाएं, वाइट की बजाय ये जो है ना, इसकी भी येलो लगवाएं। और नींद से पहले आप टीवी और मोबाइल हुण असल आजमाइश थे कि रात को सोते वक्त आखिरी चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो मोबाइल होता है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहली जो चीज़ आप पकड़ते हो वो मोबाइल होता है। तो ये जो मोबाइल की लाइट है, टीवी की लाइट है, ये नींद उड़ाती है असल में। तो इसकी बजाय जो एक वो रवायती पुराना तरीका था ना कि आप बुक रीडिंग करें, अखबार नहीं पढ़नी ना, उसने स्ट्रेस आपको आ जानी है और आपकी नींद उड़ जानी है। तो वो बुक रीडिंग भी मौत का मंजर नहीं पढ़नी, वो भी थोड़ी नींद उड़ा देगी। उसमें आपको कोई हिस्ट्री है, मज़हब की है, नावल है, कोई चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपको मजाज को पसंद आती है, वो वाला बुक रीडिंग करें, वो आपको नींद में ज़्यादा हेल्प कर देगी। एक और बहुत सारी जो चीज़ है, अक्सर लोग कहते हैं जी ज़ीरो द बल्ब जला लें जी, नो। जो मेलाटोनिन है, इट नीड्स कंप्लीट डार्कनेस। इवन जो आपके ये वो क्लॉक से या एसी से या कहीं से जो लाइट आ रही, वो भी मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। दैट शुड बी कंप्लीट डार्कनेस। और आपका जो बेड है वो आपकी बॉडी के मुताबिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो नरम बिस्तर के आदी हैं, उन्हें सख्त मंजी पे पा दो, फट्टे पे पा दो, चेंज कर दो, नींद नहीं आएगी उन्हें। जो जिस बिस्तर के आप आदी हैं ना, वो कोशिश करें कि उसी के ऊपर, तो नींद बेहतर हो जाएगी आपकी। थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पिछले दिनों ना यूट्यूब से सुना है, एक डाइटिशियन कह रहे थे कि जो हेल्थ का राज है वो इस चीज़ में है कि ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। काइंडली इसे एक्सप्लेन। नहीं, वो आजकल ये कह रहे हैं कि जो पानी है ना वो चूस के पिए, सिप बाई सिप पिए। इसमें अब क्या साइंटिफिकली ये कितनी चीज़ प्रूवन है, मैंने तो इसके ऊपर काफ़ी सर्च की, मुझे तो कोई पेपर नहीं मिला इसके ऊपर। देखिए, एक चीज़ होती है ना कि आप एक अकीदतन आपको कह दिया जाए कि ये सुन्नत है, फिर तो चुप, गुंजाइश ही कोई नहीं कि अगली बात करो।
ایک یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایک بہتر ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا بہتر ہے؟ کیا یہ پروون ہے؟ تو مجھے تو ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی پیپر نظر نہیں آیا کہ اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے ہمیں جو بچپن سے بتایا گیا تھا، میں کبھی پولیٹیکل اور ریلیجیس میٹر میں بات نہیں کرتا، پبلکلی نہیں کرتا، تو ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کھڑے ہو کے پانی پینا بڑا خراب ہے، لیکن اب وہ بھی ثابت ہے کہ حدیث میں بھی حضرت علی سے کرم اللہ وجہ کا بھی ہے، کھڑے ہو کے انہوں نے بھی پانی پیا کبھی نہ کبھی، یہ نہیں کہ ہر وقت پینا، لہٰذا وہ جو تھا نا کہ پانی جب پینا لازمی بیٹھ کے ہی پینا ہے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ریفرنسز ہے، لیکن چونکہ ریلیجن میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ جو یہ والا ہے نا پانی آپ چوس کے پئیں، اس کا بھی کوئی اتھینٹیکیٹڈ ریفرنس مجھے تو نہیں ملا کہیں بھی۔ پانی پئیں، اچھا وہ جو ہے نا پانی کتنا پینا ہے، اس کو بھی لوگوں نے بڑا بنایا جی 8 گلاس لازمی پینے ہیں۔ اب میں ایگریکلچر کا بندہ، میں کہتا ہوں جی روز پودے کو 8 گلاس پانی لازمی دینے ہیں، جب ضرورت ہے تب دیں یار اس کو، آپ کی باڈی جب پانی مانگتی ہے اس کو دے، ہاں تھوڑا کم نہیں پانی پینا چاہیے، فلٹریشن ہونی چاہیے، وہ ایک ٹھیک ہے کہ فلٹر ہونا چاہیے، ایکسیسو پانی پینا بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے کہ زیادہ پانی پینے سے بھی آپ کو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سم ٹائم ایسے کوئی ایک پوسٹ کسی نے کر دی یا تھوڑا سا کسی نے کہہ دیا، اس کو پھر لوگ کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ریفرنس کیا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔